Hello everyone, welcome to this channel and I'm your mentor Khansa. And today I just given you the lesson which is very important as far as this the chapter whatever we are just going, the RC chapter is going on. Exactly. So I just given you three different lectures and upload those videos which were very important for you for as far as your CAT or other examination is concerned where RC is being asked. So guys, we have already learned that what is RC and what are the kinds of RC and the types of questions and the structures of the questions. We have already discussed a lot of parameters of that one, the mechanism of RCs. Now it's very important to understand the concept of tone. You know why? What is the reason behind that? That we must understand the tone of RC, because whatever we are going to speak about someone or something, definitely that will based on the tone, right? Now the way of communication, the way of saying something. So in the same manner, lots of things which have been stated by the writers or the authors in your passage. So it's very important to understand that what kind of tone, and you can say the what kind of adjective has been used for that particular purpose of things, right? So today I just begin the sessions with the topic of tone, so that will be convenient for your respective examinations, for your questions, and you can just easily understand. First of all, it's very important to understand the tone. Then after you would be able to give the answer of that particular, because tone is what basically it is the you can say the way the author is trying to state or convey the message is all about the tone, right? So let's begin and we will start the sessions with the help of definitions. So first of all, we have to understand what is tone, then we will just describe some important tones for your upcoming examination. Now, so there is a line which I'm going to read it out, that the tone of the passage represents the author's sentiment or attitude towards the subjects being discussed. So it's important. What is that? This is the sentiment or attitude towards. So whether it is we are just we talk about attitude or sentiment, whatever, but it is totally based on the adjectives, which is not totally. I'm just telling you. Giving you the hint that how you would be able to identify that one particular word. So adjective, if the writer is going to introduce something or stating about something, so that they will definitely mention some adjective before the noun. So on that basis you can easily identify that what the writer's opinion, what they are just thinking about that one. For example, if I'm just talking about good people, right? Good people, so definitely the writer is talking about the positive sense, is giving the positive sense over here. So on the basis of adjective, or you can say the sentiment or attitude towards the subject, which he is just going to introduce over there. So on that basis you can easily understand that what kind of the tone. But it's understand that what it's easy to understand that what it is going to be, what the author is going to state over there. But that will be a little bit problematic to identify appropriate tone over there, because you can easily understand that is the passage is going through the negativity or positive, something like that one. So but it's very it would be a little bit problematic for you to identify the a specific tone, right? You can just take the general phenomena from there, but it would be a little bit tough for you. I'm not talking about all as a whole that you will feel toughness over there, but if you are just going before preparation or before practice, so you can just feel some kind of the toughness over there. But मैं इस चीज़ों को क्लास को यहाँ पे करने का सेशन यही है कि आपको टोन थोड़े बहुत समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस में टोन आता है तो आपको याद रहना चाहिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप टोन को आसानी से पकड़ सके। तो आइए लेट्स वी बिगिन द सेशन। तो यहाँ पे हमने एक टोन देख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे असॉबिक, हार्श, सीवियर, बिटर एंड कॉस्टिक एंड विट्रोलिक। तो सभी का मीनिंग एक है दोस्तों। ये सारे टोन आपके ऑप्शंस में हो सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए होंगे टोन्स के विच टाइप ऑफ टोन हैज बीन यूज्ड बाय द ऑथर्स एंड व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। डायरेक्टली क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि मैंने थर्ड आपको पैसेज वाले में दे रखा था। तो आप जल्दी से इस चीज़ों को देख लो कि ये सारे जितने भी हैं असॉबिक, हार्श, बिटर, बिटर मतलब कि कड़वा, कुछ कड़वाहट। तो व्हाट इज दैट?
that must be the disliking or disapproval of whatever they have just used over there. तो writer ने, author ने जो चीज use किया है वहाँ पे, तो talking about the negativity of something, right? Disliking. So just read it out. How would you express your dislike or disapproval for something or someone in a harsh way, right? So here comes the role of a subjectone. The author reveals his disagreement with a particular theory or may express his disdain towards a person and a subjectone. Once you identify these tones, you will be able to answer the author's agree or disagree questions that follow the assist. तो सबसे पहले आप तो ये जान लोगे, इससे बेटर होगा कि ये टोन क्या है. तो इस टाइप का अगर डिसलाइकिंग है या डिसअप्रूवल ऑफ किसी भी चीज़ों के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में है, तो अगर टोन पूछता है तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होंगे, तो आपको वो ऑप्शंस में टिक लगाना है. और दूसरा चीज़ यह है कि आप इसी से रिलेटेड आप ये पता कर सकते हो कि ऑथर अग्री करता है या फिर डिसअग्री करता है, राइट. ये भी आपको पता हो जाना चाहिए क्वेश्चंस के. तो आई होप यू आर जस्ट गेटिंग कि क्या होगा कि डिसलाइक या डिसएग्री. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि हमने बात किया कि अभी जो चल रहा है हमारे इकॉनमी सिस्टम, जैसे कि इकॉनमी अभी हमारा चल रहा है, तो उसके बारे में अगर ऑथर जो है किस वे में बोलना बात करना को पसंद कर रहा है कि जो हमारी इकॉनमी की अभी कंडीशंस है क्या वो सही है. अगर लाइकिंग में है तो ये असर्बिक, हार्श, सीवियर, बिटर, कॉस्टिक नहीं होगा, ठीक है. अगर डिसलाइकिंग, डिसअप्रूवल है तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह हैं उससे वो डिसएग्री करता है, उसको सही नहीं लगता है. तो अगर टोन पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑथर्स टोन, या फिर कह सकते हैं कि व्हाट आर द टोन ऑफ द पैसेज, तो ये आपको ऑप्शन में ये सारे अगर मिलते हैं तो दैट विल बी द आंसर. अदरवाइज उसका कुछ अलग ही आंसर्स होगा जो फिफ्थ में होता है कि नन ऑफ दीज, राइट. तो आप कह सकते हो कि असर्बिक क्या है, बिटरनेस. बिटरनेस असर्बिक का मतलब क्या है कि डिसलाइकिंग, हार्श, सीवियर जिसको बोलते हैं, सीवियर डिसलाइकिंग समथिंग. तो आप यहाँ से आसानी से उसको पता कर सकते हो कि ऑथर डिसलाइक कर रहा है तो ठीक है, असर्बिक है, हार्श है, सीवियर एंड बिटर है. इसका सैम्पल पेपर में हम लोग देखने वाले हैं अभी. जस्ट नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में एंग्री और इंडिग्नेंट है. इंडिग्नेंट का मतलब भी गुस्सा होता है, और आप कह सकते हो कि एनॉइंग होना, राइट ना, इरिटेट हो जाना. तो दिस काइंड ऑफ टोन शोज द ऑथर से एंग्री टुवर्ड्स द सब्जेक्ट इन अ जस्टिफाइड वे. मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ों से चिढ़ जाना बिकॉज ऑथर्स डजंट लाइक दैट वन. नहीं, ऑथर्स के ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं, किसी का पर्सनल ओपिनियन तो वहाँ पे चलेगा नहीं, राइट. तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है जस्टिफाई वे, तो मतलब कि वो जस्टिफिकेशंस के लिए उसने प्रेमाइसेस दे रखा होगा. How do you justify your anger towards any unfair system? This is unfair system. देखिए पॉइंट आउट में कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, आप भी पॉइंट से देखते जाओ. क्या पहले क्या है कि वो ऑथर क्या करेगा, जस्टिफाई वे में उस पर गुस्सा होगा, ठीक है ना. और ये देखिए ये भी असर्बिक टाइप ही है, मतलब कि ये असर्बिक से थोड़ा सा आपको ज़्यादा अपने ओपिनियंस को पुट करेगा, लेकिन जस्टिफाई वे में. और ये क्या होगा कि अनफेयर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वो जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है. तो इसके लिए भी प्रेमाइसिस और बहुत सारे उसने फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे होंगे, ऑन दैट बेसिस आपको लगेगा कि वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर. तो यू मे डू सो बाय सम आर्गुमेंट्स, फैक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है. यू मे डू सो बाय सम आर्गुमेंट्स, फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, राइट. Similarly, the authors intend to justify his anger by stating various reasons related to the issue. ऐसा नहीं होगा कि वो अपना पर्सनल ओपिनियन को दे करके बोलेगा कि आई डोंट लाइक दिस कलर और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है. नो नो नो, वहाँ पे जस्टिफिकेशन होगा. हो सकता है कि वहाँ के कलर्स सभी को पसंद नहीं आ रहे होंगे, पूरी पब्लिक को पसंद नहीं आ रही होगी, और वो हो सकता है कि कलर से कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, कुछ भी, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कहीं किसी भी स्टेट का अगर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस चीज़ों के लिए भी एक ऑथर बता सकता है, जस्टिफिएबल आंसर दे सकता है कि क्या होना चाहिए. लेकिन वो उसका क्या होगा, एंगर वे में होगा. एंगर वे में उसको क्रिटिसाइज करता है और उसको जस्टिफाइड भी करने की कोशिश करता है विद द वेरियस रीजंस, राइट, रिलेटेड टू द इश्यूज. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट है सिनिकल. सिनिकल का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ों के बारे में बात करते हो और ये सोचते हो कि जितने भी लोग हैं सब के सब सेल्फ सेंट्रिक हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, या फिर सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं, राइट. तो सिनिकल इट्स कम आउट लाइक द, आई मीन व्हेन द ऑथर इज स्पीकिंग टुवर्ड्स द सेल्फिशनेस, गेटिंग. तो हाउ डू टेंड टू स्पीक अबाउट पीपल फाइंड डिस्ट्रस्टफुल, मतलब कि डिस्ट्रस्टफुल मतलब जिसमें भरोसा नहीं है, राइट. Here comes the role of the cynical tone. Passage written in cynical tone reveal author's views. क्या दिखाता है, author's views of society
बीइंग ड्रिवन प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट से ही चलाया जा रहा है उस सोसाइटी को। तो जो भी चीज उसमें दिखाया जाएगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस, किसी भी पर्सन के सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड वो चीजें बातें कही जा रही है और ऑथर भी उसी तरीके से जा रहा है, तो ऑथर का जो टोन होगा वो सिनिकल होगा, ठीक है। उसमें हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सैम्पल पेपर में बात करेंगे, अभी आने वाला है हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो सैम्पल पेपर पे ही होगा, और सारे इसमें टोन भी होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे अभी यहाँ पे आपको फैमिलियर करा दे रहा हूँ सारे टोन से, जो जो टोन्स इसमें पूछे जाएंगे एग्जाम्पल्स में, फिर हम लोग उसमें बात करेंगे। तो सिनिकल का क्या होगा कि ऑथर्स बताएगा कि उसका जो पूरा का पूरा जो टॉपिक होगा वो सेल्फ इंटरेस्टेड होगा, सेल्फ सेंट्रिक होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डॉगमैटिक। ये दो तीन वर्ड से बना हुआ है, डॉग मैटिक, डॉगमैटिक। ये डॉगमैटिक क्या होता है? डॉगमैटिक होता है भाई जो वो आप कह सकते हो कि वो पूरी की पूरी तरीके से खुद के ही बारे में सोचता है कि वही सही है, बाकी सारे चीज गलत है, राइट ना, वही सही है। ऑथर्स मतलब कि जो पॉइंट पुट करता है वही सही है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे लोगों गलत हैं। तो यू मस्ट हैव सम फर्म बिलीव्स and perspective regarding particular aspects of life. In what kind of tone will you speak about them? This is where dogmatic tones comes into play. When the author is assertive regarding his opinions, he uses a dogmatic tone to convey his viewpoint. तो देखिए इसमें क्या पॉइंट्स आ रहा है? When the author is assertive regarding his opinion, he uses a dogmatic tone. Dogmatic tone का मतलब है कि ऑथर्स का जो भी ओपिनियन है ये परफेक्ट है, अच्छा है, सबसे अच्छा है, बाकी जितने भी आपके वहाँ पे पॉइंट्स दिए रहेंगे उसको क्रिटिसाइज करते हुए इस चीज़ों को वो बोलने की कोशिश करेगा। मतलब उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेल्फ बिलीफ पर होगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि ये पॉइंट्स परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, जितने भी लोग हैं सब के सब वो गलत हैं इस रिस्पेक्ट में, राइट। तो उसमें आप देख लोगे कि क्रिटिसाइज करने के बाद अपने जितने भी पॉइंट्स को है वो किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। तो डॉगमेटिक बेसिकली क्या हो गया? डॉगमेटिक का मतलब ये होता है कि वो ऑथर ये सोचता है कि वो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो वही सही है, बाकी जितने लोग हैं वो उसके सामने गलत है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम इमोशनल। इमोशनल आप वर्ड से ही देख पा रहे हो कि क्या है इमोशंस। उसमें जितने भी स्टोरीज वगैरह जो भी दिया रहेगा, इंसिडेंट्स, और वो सारे चीज इमोशंस के ही बेस पे बेस्ड होंगे। आपके ऑथर्स आराम से उसको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि ये इमोशनल बेस्ड है, क्योंकि उसमें वैसे वर्ड्स लिखे रहेंगे जो कि आपको उस इमोशन से टच करने की कोशिश कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी के एक्सीडेंट्स के बारे में होगा, या फिर किसी ऑथर्स अगर एक्सीडेंट्स में इमोशंस को शो करने की कोशिश कर रहा है, फीलिंग को पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे चीज आपके इमोशंस को टच करेंगे। तो वहां पे आराम से यू कैन जस्ट इजीली ड्रॉ दिस पर्टिकुलर। ऑप्शन में भी रहता है यार, एलिमिनेट कर लेंगे, इतना गलत गलत भी ऑप्शंस नहीं होते हैं, मतलब इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं रहेंगे कि एसर्बिक या फिर इमोशंस में आप इसको अंतर नहीं कर पाओगे, इजिली कर पाओगे। तो while narrating an accident, event, story, an author uses an emotional tone of writing in order to portray the feelings regarding the same. Such RC's passage may appear complex and need to be reread to arrive at the right answer. तो देखो जी थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता तो है, बट आई विल टेल कि री रीडिंग थोड़ा सा करने के बाद आप उसको आराम से समझ सकते हो, क्योंकि इमोशनल में होता क्या है कि इफ राइटर इज ट्राइंग टू स्टेट द इवेंट और स्टोरी अबाउट समथिंग, तो स्टोरी में ऐसा होता है कि हम लोग आगे का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे में जैसे ही आते हैं तो ये भूल जाते हैं, राइट। तो इसमें थोड़ा सा ये तो सभी के साथ होता है, और इमोशनल और जो स्टोरी बेस्ड होता है वो काफ़ी पैसेज जो होते हैं वो लॉन्ग पैसेज होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि जब हम लोग रीड करते हैं तो ये पहले का जो पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, लास्ट में जाते जाते हमें ये मिस करने लग जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होता ही है, बट आपको रीड रीडिंग कर करके इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो इमोशनल्स वाले उसमें वर्ड्स लिखे रहेंगे, इंसिडेंट्स के बारे में होगा, इवेंट के बारे में, स्टोरीज उसमें मेंशन होंगे, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा अगर नहीं समझ में आता कैसे उसको करते हैं, क्योंकि जब तक आप सैम्पल पेपर, आरसी का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जब तक आप सैम्पल पेपर यूज नहीं करोगे, उसमें जितने भी अभी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है आपको वो जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सब के सब आपके आरसी के लिए ही है। तो आप आरसी को यूज करो, उसके बाद समझ में आने लग जाएगा।
नेक्स्ट हमारा आता है इथिकल। इथिकल का मतलब इथिकल वैल्यूज एंड ऑल। तो आप देख सकते हो ऑनेस्टी से, मोरालिटी, मिटालिटी, ये सारी चीज़ों से अगर बातें होती हैं ऑथर्स के द्वारा, ये सारे इश्यूज आप ऑथर्स लाता है एक पैसेज में, तो ये इथिकल, इसका टोन इथिकल हो जाएगा। एज यू वुड नो द इश्यूज ऑफ एथिक्स इन बिजनेस हैव assumed greater relevance in the growing corporate culture. The authors employs and ethical tone to depict the issues of morality, righteousness, honesty, etc. तो ये सारे चीज़ों से रिलेटेड होगा। ऑथर्स अपने आप को सारी चीज़ों में ऑनेस्टी, मोरालिटी, मिटालिटी, ये सारी चीज़ों को डालने की कोशिश करेगा। तो वर्ड्स वहाँ पे लिखे रहेंगे कि, और वो जो कंटेंट भी होंगे वो किस तरह फ्लो कर रहे होंगे, यू कैन ईजिली ड्रॉ फ्रॉम देयर। ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग टोन के लिए अलग अलग चीज़ें भी बताऊंगा आगे के वीडियोज़ में। नेक्स्ट आपके पास में आता है यूफेमिस्टिक। यूफेमिस्टिक बहुत पूछे जाने वाला ये एक वर्ड है, नया भी आपको अभी आपको एक एग्जाम में भी पूछा गया है, मैनेजमेंट के एग्जाम में, इफेमिस्टिक। तो ये क्या है, इफेमिस्टिक क्या है भाई? तो मैं आपको बताऊंगा किसी भी जो मतलब कह सकते हैं किसी गलत तरीके के चीज़ों को सही तरीके से बात करना, उसी को मतलब कि उस लहजे में बात नहीं करना। मेरा कहने का मतलब है कि आई मीन टॉकिंग द बैड एलिमेंट्स इन द राइट वे इज कॉल्ड द इफेमिस्टिक, राइट? तो हाउ डू यू एक्सप्रेस योर डिसलाइकिंग और डिसएग्रीमेंट विदाउट बीइंग ऑफेंसिव और ब्लंट? ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ों को डिसलाइक करते हो और डिसएग्रीमेंट करते हो, तो उसको आप एनॉय हो करके नहीं, जबकि आप मतलब कि अच्छे तरीके से अगर उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, तो उसी को इफेमिस्टिक बोलते हैं, राइट? So how do you express your dislike or disagreement without being offensive or blunt? In such a case, euphemistic tone comes to your, I mean, rescue. So RC passages in this kind of the tone make use of indirect and implicit statement. This is very easy for you. जैसे कि किसी भी मतलब कोई भी टॉपिक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी बुरे चीज़ों के बारे में और उसको सही तरीके से बात करना, दैट इज कॉल्ड इफेमिस्टिक। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं टोनटीज बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं टोन्स और भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं जिसमें आपको सैम्पल पेपर्स दिखाएंगे, और जितने भी स्ट्रैटेजीज और हम लोगों ने फॉलो अब तक किया है सारे वीडियोस में, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे वहां पर। ठीक है, तो हम लोग लेकिन एक पॉइंट और है विच आई जस्ट डिस्कस, ये जितने भी टोन्स हैं थोड़ा सा क्लोज कनेक्टेड होंगे। इसको आप हम लोग इस चीज़ों को सैम्पल पेपर के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ कि जहाँ से भी अभी आप कोई भी पैसेज को यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ये सारी चीज़ों को खोजने की कोशिश करो। अगर टोन का क्वेश्चन उसमें नहीं दिया है, फिर भी यू जस्ट ट्राई टू I mean, find out that what kind of the tone of the passage would be over there, what kind of the tone has been used over there by the authors. तो ये अगर आप कर पाते हो, whether I mean the tone of the, I mean जो आरसी के टोन वहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन या नहीं, उसको आप छोड़ दो। उसको अगर नहीं भी है तो in spite of that you have to just find out the tone of the RC। इससे क्या होगा कि इससे आप उस वक्त अब जो भी आपको टोन लगता है जिस भी पैसेज से रिलेटेड, आप मुझे उसको कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपको टोन इसमें भी जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है, अगर इसे समझ में नहीं आता है, प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं इसको और इलेबोरेट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार टोन्स के साथ। थैंक्स अ लॉट।